Hello students, I Sushma Kataria from Surya School Bhiwadi, and today in this video we will discuss about the concept of helping verb. As you know that in our previous video we will discuss about the introduction of tense, what is the tense and what kind of tenses we have. Okay, and how we are able to understand in which type of tenses we are discussing about. In this video we will discuss about the concept of helping verb, how we get to know that which tenses and which timing of there we are discussing about. Okay, whenever you find in your whenever you find do, does, ism, are, has, have in your sentences, that means it is the form of present tense. Okay, and whenever you have did, was, were and had, at that time you will find that this is the kind of past tense. And in future tense we always have will and shall and other more, with some kind of things were added with this, but will and shall will be there in every sentence. Okay, why we categorize these things in these different helping verb? Because as you know that in any kind of things, how we can differentiate, we can have a particular thing and we can have a particular rules about it, and because of that reason in grammar we have these kind of things to differentiate between present tense, past tense and future tense. Clear? Okay, for example, how we can understand it, because nowadays in the past previous classes what kind of things were there, the things were given in the you can say in you have to translate from Hindi sentence to English sentence, to into English, correct? But nowadays you have to find out the errors between that, correct? A paragraph will given to you, and in that you have to find out the some kind of errors, whether it's a tense or something. So this time you should understand what kind of helping verb are there, by which you are able to understand what kind of sentences and what kind of tenses were used by the in the question. Clear? So because of that reason we are making you understand like this. So when do, does, ism, are or has, have word are there in a sentence, then you will definitely understand that this is a present tense. In past tense, did, was, were and had and will, shall. I hope you're clear with this. So for example, we understand that this by this we are understanding about the time only. She does not understand English. Does it, with this word we clearly understand, if you are aware about this helping verb, you can clearly understand that does, if the does word is there, the sentence belongs to present tense. If the did word is there, then definitely it belongs to past tense, and if will is there, then it definitely belongs to future tense. As you know that in a entire paragraph mostly one kind of tense will be used only, so it will become a very easy thing for you to find out the errors in the paragraph. Clear? So अब how we can differentiate that things with work, वर्क के अकॉर्डिंग हम कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे? We can get idea from the verb form. Clear? What kind of verb form are given in this sentence, then only we are able to understand the different types of verb. For example, verb form, we have three types of verb form with us all the time: do, did, first form do, second did, and third is done. So whenever the sentence is having these kind of verb form, there's a go, went, gone, so some kind of things were there. So in that way you are able to understand which kind of sentences and which kind of tenses were used. And now for example, whenever we have first form, that means the work is indefinite. Clear? By that you are understand that it is the indefinite, whether it's past tense, future tense, whether it's uh, whatever the tenses it is indefinite. Okay, एंड वेन एवर यू आर हैविंग फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आप कभी भी आई एन जी को यूज़ करते हैं, अगर सेंटेंस में आई एन जी दिया हुआ है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? कॉन्टीन्यूस टेंस. और वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी भी सेंटेंस में है, इसका मतलब वो क्या है? वो परफेक्ट टेंस है. दैट मीन्स उस काम को, वो काम पूरा हो गया. तो इस तरह से हम वर्ब के अकॉर्डिंग भी समझ पाएंगे. जिस भी सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब वो इनडेफिनेट टेंस का सेंटेंस का पार्ट है. अगर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी है तो इसका मतलब वो क्या हो गया? वो कॉन्टीन्यूस का पार्ट है. और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है तो वो कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस, यानी कि वो काम हो चुका है. क्लियर? वो इस तरीके से भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं. और अगर हमारे पास ये चीज़ें गिवन हो तो हम ये आइडिया लगा जाएंगे कि कौन सा टेंस है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम अपने एरर्स को ईजिली फाइंड आउट कर पाएंगे. क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टैंड टिल नाउ.
सो लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या मतलब है और उसमें किस तरह से हम उसको फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम उसको में एरर डिटेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले पूछते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट द इन द टेंसेज ओनली वी डिस्कस अबाउट ओनली 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट इज एफर्मेटिव, सेकंड इज नेगेटिव एंड थर्ड इज इंटेरोगेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? व्हेन वी डिस्कस अबाउट द थिंग्स इन अ नॉर्मल वे और इन इन द येस फॉर्म, मतलब हाँ की वाक्य में अगर कोई सेंटेंस है कि मैं ये काम करता हूँ, दैट मीन्स आप वो चीज़ कर रहे हो या करते हो, इट्स योर हैबिट। Clear? And especially in present indefinite tense, we usually highlighted about the our daily routine or the habit or that kind of things we understand in the present indefinite tense. So when we discuss about the things in normal way or in the yes form, it definitely in the form of indefinite tense. Clear? So what is the structure of a sentence in this? स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब मतलब उस आपका जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वो, एंड देन एस और ई एस मेन वर्ब, और यू कैन से द वर्क, यहाँ पे जो भी काम दिया गया हो वो हो जाएगा, प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन अफर्मेटिव सेंटेंस ओनली। क्लियर? सो अब यहाँ पे आपका आ जाएगा कि एस और एस का अलग से क्या पंगा है। कि एस और एस का हम यूज़ कब करेंगे? वो यूज़ एस और एस विद मेन वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट इज़ थर्ड पर्सन और द सिंगुलर। जब भी हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में हो और सिंगुलर हो तब हम क्या करेंगे? वी विल यूज़ द वर्ड एस और एस विद मेन वर्ब। क्लियर? यहाँ पे ये एस और एस जो है वो किसके साथ जुड़ जाएगा? मेन वर्ब के साथ। क्लियर? एंड देन ऑब्जेक्ट। एंड टू मेक इट मोर अंडरस्टैंड वी हैव सम सेंटेंसेज ओवर हियर टू मेक इट अंडरस्टैंड। देखिए पहले है तुम उसे जानते हो, इट्स यू मतलब दैट मीन्स ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन हो जाएगा मैं, सेकंड पर्सन हो जाएगा जिससे आप बात कर रहे हो तुम, एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। ओके, सो दिस इज द वे बाय यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। एंड एज यू ऑल नो दैट रोहन मेरे साथ रहता है, रोहन यानी कि आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो। क्लियर? रोहन लिव्स विद मी, यहाँ पे हमने एस और एस यूज़ कर लिया, बाकी हमने किसी भी सेंटेंस में हमने एस और एस को यूज़ हम नहीं करेंगे, ओनली थर्ड पर्सन के साथ और जिसमें आपका सिंगुलर वर्ड के बारे में बात कर रही हो। अब आप बोलेंगे कि आई भी तो सिंगुलर है। नो इट्स आई इज़ सिंगुलर बट ऑलवेज इट इज़ कंसिडर्ड एज प्लूरल। इसको हम हमेशा प्लूरल के तौर पे ही कंसीडर करते हैं, इसको हम कभी सिंगुलर के तौर पे यूज़ नहीं करते हैं इन द ग्रामर रूल। क्लियर? अब नेगेटिव सेंटेंसेस में हम देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दिस विल बी योर स्ट्रक्चर। क्लियर? अब अगेन अब यहाँ पे आप बात करेंगे कि डू और डज किसकी जगह पे लगेगा? डू लगेगा विद योर फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन, एंड डज विल ऑलवेज विल यूज विद थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर। समझ में आ गया? ही शी इट के साथ हम क्या लगाएंगे? डू और डज। आई वो यू दे के साथ हम क्या लगाएंगे? डू। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, आई सिंगुलर है लेकिन हमेशा हम उसके साथ क्या लगाएंगे? डू, वेदर इट्स अ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? सो व्हेन वी यूज डू और डज इन एवरी सेंटेंस, बट वी कैन यूज ए डू और डज कैसे करेंगे? वी यूज डज विद थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर पर्सन ओनली। ओके, अब एंड डू विद द प्लूरल, बट विद आई वी ओनली यूज डू। अब देखिए अगेन है यहाँ पे आई की बात, आई डो नॉट टेल लाई, यू डो नॉट गो टू स्कूल, राम डज नॉट। अब हमने राम के साथ क्या लगाया है? डज। क्लियर? एंड सेम इन द इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम कैसे लिखेंगे? डू डज। जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन सेंटेंसेस जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को पूछते हैं, तो हमेशा हम क्या करेंगे? इसमें क्या होता है? स्टार्टिंग होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब के साथ। कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसमें हमेशा ध्यान रखना योर क्वेश्चन ऑलवेज विल, योर सेंटेंस विल ऑलवेज बी स्टार्टेड विद योर helping verb. So do or does will consider as helping verb in present indefinite tense. So do does plus subject plus verb की first form plus object. Clear? अब हम इसी में देख लेते हैं, क्या तुम स्कूल जाते हो? अगर हम इसी सेंटेंस को बोले क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? सिंपल।
Clear? In this way, I hope you understand the concept of present indefinite tense. Thank you.